ये इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, this is the most fundamental thing in accountancy. This is the foundation of accountancy. Transaction means exchange one thing for another. Even if you're not getting something tangible immediately, maybe you are getting a promise, a legal right to collect money or something else after a while. But even then you're getting something. Okay, exchange. So because it is exchange, you give something and you take something, you give something and you get something. It involves give and get. Both aspects are there. इसीलिए इसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे लेन देन बोलते हैं ट्रांजैक्शन को। मतलब लेना भी होता है, देना भी। लेन और देन नहीं है, लेन एंड देन। एंड we also discussed that this is also called the dual aspect in accountancy. Every transaction will have two aspects, will have two impacts. Okay? We also saw an example of this. Suppose you start a business by borrowing some money. So you have something when you start your business, you have cash, rupees 500. But you also owe something. The moment you have something, you also owe something. You owe rupees 500 to whosoever the person is from whom you borrowed this money. अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बोरो किए, what you have, rupees 500. So obviously you owe it to someone, rupees 500. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लायबिलिटी। लेकिन अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे बोरो नहीं किए, तुम्हारे पास पैसे थे, तो ये जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, व्हाट यू हैव व्हाट यू ओ, ये किसके पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं? बिजनेस। ऑलवेज बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस के पास क्या है? रुपीज 500 इन कैश, राइट? एंड द बिजनेस ओज यू। अब रियल में बिजनेस और तुम अलग अलग नहीं हो, बट अकाउंटिंग के लिए अलग अलग मानेंगे। तो द बिजनेस ओज यू रुपीज 500 इन कैश। ओके, इसको भी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी ही मानेंगे। अगर आज ये बिजनेस बंद हो जाए या स्टार्ट ही नहीं हो, तो बिजनेस विल रिटर्न दैट मनी बैक टू यू, राइट? जिससे भी लिया है बिजनेस, अगर सेपरेट पर्सन होता, हम उसको सेपरेट ही मान रहे हैं। अगर सेपरेट पर्सन होता तो पैसे लौटाता ना। तो बिजनेस को हम सेपरेट ही मान रहे हैं, तो उसको हम लायबिलिटी मानेंगे। इट इज जस्ट दैट when the owner is investing money in the business, it is also a liability, but we give it a special name. What is that name? Capital. Correct, capital. So I told you that whenever there is a transaction, there are two faces, two aspects to it. Just like एक coin में head भी होता है, tail भी होता है। coin मोटा हो या पतला हो, दो फेस तो होने ही होंगे, और तुम कुछ भी कर लो, दो फेस रहेंगे, राइट? सिमिलरली अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन का डबल एस्पेक्ट होता है, डबल इंपैक्ट होता है। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करते टाइम भी हमें दो बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। अभी एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, तुमने पैसे बोरो किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 500 रुपए, लेकिन तुमको दो चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ी ना। यू हैव कैश ऑल्सो, विच इज अ रिसोर्स, विच इज एन एसेट, बट यू ऑल्सो हैव अ responsibility or a burden to pay back rupees 500, which is a liability. So whenever you have something, you also owe something to somebody. Either now you are the business, okay? अब तुम business हो, owner नहीं हो. So you owe something to somebody, an outsider or the owner, but definitely you owe something. Second, how much you have will always be equal to how much you owe. So it's not possible for the business, it's not possible to have some resources and not owe anything to anybody. क्योंकि अगर resources हैं तो कहीं से तो आए होंगे ना, किसी ने तो दिए होंगे।
नहीं तो बिजनेस के पास रिसोर्सेज आए कहां से? अगर हैं तो किसी से मिले होंगे. Therefore, the business also has the responsibility or the burden to pay it back. So business owes that to someone. Clear? And how much you have will be equal to how much you owe. Is this clear? मेरा डाउट है. हाँ डाउट है. हाँ तो पूछो. अगर ये सेकंड पॉइंट वैलिड कैसे हो सकता है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी से बोरो किया, उस पर आपको प्रॉफिट मिला, तो फिर थोड़ी इक्वल होगा हाउ मच यू हैव इज इक्वल टू हाउ मच. Very intelligent question. I will answer this. This will get answered not today but in the next class. I will go step by step and 3-4 steps के बाद ये question answer हो जाएगा अपने आप. ठीक है? Just remember you are the business. So how much you owe will be equal to how much you have. Because अगर 500 रुपए तुम्हारे पास है तो 500 रुपए किसी ने तो दिए होंगे. You owe 500 रुपया to someone. Whether it is the owner, capital, या whether it is borrowed from someone else, other liability, but in any case they have a claim on this. Business इन दैट केस आप अगर किसी को वो कर रहे हो तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ज्यादा ही देना पड़ेगा. हाँ, जब इंटरेस्ट लगेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा. अभी मैं इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस की बात अभी नहीं करूंगा. पहले मैं तुमको जो सिखा रहा हूं, पहले मैं सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की बात करूंगा. नेक्स्ट स्टेज में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. That is why I told you your question about profit will get answered in the next class. But very good question. I'm happy. This relationship between have and owe. If you have, you must also owe. You are the business now. You are no longer the person. If you have, you must also owe. How much you have, that much equal amount you must owe. इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो have का मतलब क्या है? What do you have? Assets. Can I write assets is equal to liability or liabilities? Right? तुम्हारे पास 500 रुपए कैश हैं और 500 रुपए की लाइबिलिटी भी है. जब उसने तुमको 500 रुपए दिए, जिससे भी तुम लेके आए हो, जब उसने तुमको 500 रुपए दिए, सिर्फ कैश नहीं दिया, साथ में एक बर्डन भी दे दिया कि तुमको वापस देने हैं 500 रुपए. तो यू रिसीव्ड द एसेट, यू ऑल्सो गेन्ड अ लायबिलिटी कि तुमको ये बर्डन है कि ये 500 रुपए लौटाने हैं. दैट पर्सन हैज अ क्लेम ऑन दिस 500. ओके, एंड एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटी. लायबिलिटी और क्लेम्स दो तरह की होती हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फंडामेंटली एसेंशियली सेम थिंग, बट ओनर के प्रति जो लायबिलिटी होती है उसको हम अलग नाम देके सेपरेटली लिखते हैं. क्यों? आगे जाके क्लियर हो जाएगा. बट अभी फिर नहीं समझ में आएगा, आगे जाके क्लियर हो जाएगा. बस ये समझ लो फिलहाल के लिए कि ये मान लो फिलहाल के लिए कि अलग ट्रीट करते हैं. तो मैं सिर्फ लायबिलिटी लिखने की जगह आई कैन राइट एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. Now capital is also a liability for the business. It is owed to the owner, and all these other liabilities are owed to outsiders. Both are claims, both are amounts owed, but हम owner के liability को एक अलग नाम देते हैं, अलग से लिख देते हैं. All right? Any confusion so far? हाँ, एक कि हमारे टीचर तो बोल रही थी कि कैपिटल इज अ एसेट फॉर द बिजनेस. लाइक इन जनरल 3-4 बोले थे कि जैसे कैपिटल के अंदर मशीनरी, लैंड वगैरह सब आता है ना, तो वो सब तो एसेट होता है ना बिजनेस का. हाँ, तो कोई भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. ओनर ने बिजनेस को 500 रुपए दिए, बिजनेस चलाने के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में. बिजनेस के पास एसेट आया क्या? नहीं. अरे आया ना 500 हाँ रुपए. आया, सॉरी आया. एसेट आया क्या? एसेट बिजनेस के लायबिलिटी पास दोनों आ गए. लायबिलिटी आई क्या? हाँ. तो कैपिटल एसेट नहीं होता है, लेकिन जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल? इट मींस गिविंग समथिंग टू द बिजनेस. तो जब बिजनेस को एसेट भी मिल रहा है और बिजनेस को एक बर्डन भी मिल रहा है ना, ये पैसा किसका है? बिजनेस का है कि ओनर का है? ओनर को रिटर्न करना होगा ना पैसा. आज अगर ये बिजनेस बंद हो जाए
तो जितना पैसा है ओनर को जाएगा ना वापस, कि बिजनेस रख लेगा अपने पास। जाएगा। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, कई बार क्या होता है, ओनर जब बड़े बिजनेसेस शुरू होते हैं, तो सपोज मेरे पास ऑलरेडी एक पीस ऑफ लैंड है, ओके, तो आई use that land for the business. It's like I'm giving land to the business. I'm not only giving cash, but I'm also giving other assets. Cash is one asset. I'm also giving land. I'm also giving plant and machinery. तो business को सिर्फ asset मिल रहा है क्या? Business को asset भी मिल रहा है और एक liability भी मिल रही है. You can never have in a business, you can never have an asset without having a liability. Okay? Why? बिजनेस का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी ने एक एंटिटी बना दी बिजनेस करने के लिए, अब बिजनेस करने के लिए उसको एसेट चाहिए, तो एसेट पैदा थोड़ी ना हो गया उसके पास भाई, किसी ने तो दिया होगा ना एसेट, एंड द मोमेंट समवन हैज गिवन इट टू यू, you have a liability to give it back. If you have something, you must owe something to somebody, either owner or outsider, but you must owe something to somebody. And what you have is equal to what you owe. That is why I can say asset is equal to liability. And to write it more clearly, I'm saying asset is equal to outsider's liability plus owner's liability, जिसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है कैपिटल। ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैंने उसी चीज को what you have that you must owe, इसी चीज को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है assets is equal to liability plus capital A is equal to L plus C। ये इसको मैंने मैथमेटिकली लिख लिया अलजेब्रा के फॉर्म में। अगर ये इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अकाउंटेंसी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी। और इसी चीज को जब हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक साइड में सारे एसेट्स लिख देते हैं, दूसरे साइड्स में सारे लाइबिलिटीज और कैपिटल लिख देते हैं, उस स्टेटमेंट का एक नाम है, क्या बोलते हैं? याद है पिछले क्लास में बताया था? इसी चीज फाइनेंशियल स्टेट नहीं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट। व्हाई? इट इज अ शीट showing the balance between assets and liabilities, and they will always be equal. So asset is always equal to liability. इसको जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। उस स्टेटमेंट को कि एक तरफ एसेट्स लिख दो, एक तरफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दो, टोटल करके देखो दोनों टोटल इक्वल होंगे। स्टेटमेंट फॉर्म में इट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट, मैथमेटिकल फॉर्म में इट इज कॉल्ड द fundamental accounting equation. Fundamental accounting equation. Asset is equal to liability plus capital. This is the most fundamental accounting equation. And because balance sheet is also based on the same concept कि एक तरफ assets लिखो, एक तरफ capital और liabilities लिखो, इसको हम कभी कभी ऐसे ही बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट भी यही होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ इक्वल।